चलेगा? Yes, बच्चों, are you ready to learn then about the important organ in your body, the eye? Shall we? Tell me, Bhumi. Shall we start? Yes, sir. चलो फिर चलो फिर पढ़ते हैं. सो दो ऑर्गन्स हम लोगों को पढ़ने हैं सेंस ऑर्गन्स में. वैसे आप लोगों ने डेफिनेशन सुना था इसका, रिस्पॉन्सिवनेस का. रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस. Okay, stimulus is anything to which our body responds. So stimulus can be that light, stimulus can be sound, stimulus can be any chemical, mechanical thing to which our body responds. तो बहुत सारे receptors हमारे body में. Those organs which receive the stimulus, they will be called as the receptors. तो वैसे है बहुत सारे. Skin is our receptor organ, tongue is the receptor organ. Right, eyes are the receptor organs, ears are the receptor organs. So we have, अगर हम लोग broadly सब receptors को पढ़ेंगे तो they can be classified into, all the receptors are divided into three categories. Those which are outside the body, they will be called as exteroreceptors. Are you getting me बच्चों? जो बॉडी के बाहर है वो exteroreceptors है. तो इसमें extero में क्या क्या आएगा? You all can say your skin is there, है ना? Then like that, ears are also extra receptors. Even you can add this tongue, then your nose, your lips, not lips. Okay, skin, ear, tongue, nose, eyes. These are all outside the body. So you can call them as the exterior receptors, right? So ear can be called as the auditory receptor. Tongue can be called as a gustatory receptor. You know, they receive sensation of taste. Nose is olfactory receptors. Eyes are optic receptors. The skin is mechanoreceptor. So we have different receptors which are outside the body. Out of this, we'll be learning only two, ear and eyes. Second type of the receptors can be called as enteroreceptors. Enteroreceptors are those which are located inside the body. So they will be responsible for sensation of your pain, pressure. Okay, pain, pressure, etc. So they can be called as the Algesi receptors. All right. For pressure, they are called the statoreceptors. Then you may have a receptors for hunger, thirst, etc. You know, we feel some sensation when you are hungry, when you are thirsty. So they come from inside. So we have some receptors. For blood pressure also, we have receptors called as baroreceptors. Okay, these are called as a visceroreceptors. For hunger and thirst can be called as visceroreceptors. Are you getting the types, बच्चों? समझ में आ रहा है? Skin वाले mechano, ear वाले auditory receptors, tongue वाले gustatory receptors. I hope you are understanding. Nose, olfactory receptors. Eyes are optic or visual receptors. So there are many types of receptors. तो ये enteroreceptors हो गए. अब entero के बाद में क्या आएगा बच्चों? There are some receptors which are called as proprioreceptors. Proprio. Where do you find them? These receptors are found in the joints. They are found in the tendons and ligaments. Did you get this? Please tell me. समझ में आई आपको बच्चों? Receptors located in the joints, tendons and ligament are called as, क्या बोलेंगे हम लोग उनको? Proprioreceptors. Is this clear everyone? Please tell me. किसको नहीं समझा? Anybody? Yes, kids. Please tell me.
Sir, understood. गुड जॉब। चलो अब इसमें से हम लोगों को सिर्फ दो ही पढ़ना है डिटेल में। वैसे आई एंड ईयर दे कैन रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम फार प्लेस। डू यू एग्री विथ मी? आई एंड ईयर receive impulse from distance, from far place. So those receptors which receive the impulse from far place, they are called as टेलेरोरिसेप्टर। लिख के रखो इसको। चलो, टेलेरोरिसेप्टर्स means what? Those receptors which receive the stimulus from distance, from far place. Is this clear? Please tell me बच्चों। बोलो बच्चों, हाँ ना, कुछ तो याद रहेगा ये। तो चलो फिर तो हो जाओ शुरू। अपना पहला टाइप आता है इसमें आईज। आर यू रेडी श्रीकांत? Shall we? So let's begin then with the first one about eyes. ठीक है, चल। So eyes are nothing but what बच्चों? कौन सी कैटेगरी में आएंगे? लाइट को रिसीव करते थे, इसलिए हम लोग इनको बोलेंगे फोटो रिसेप्टर्स। Eyes are called as photoreceptors. Photo because they receive light. ठीक है, they receive light, they do not reflect light. Remember, this was important characteristic feature of eyes, the most beautiful part of our body, by which we can see this beautiful nature, right? तो अब इसके details पढ़ते हैं. So whenever you say eyes, where are they located? Do you know where is the location of your eyes? Can you tell me? Eyes are located in what? Eye sockets. You should know this word, bachcho. Or they can also be called as the orbits. Keep this in your mind. The location of your eyes is there in the bony sockets, which are there here in this skull. So we have got two bony sockets, which are called as eye sockets or which are called as eye orbits. And they not only accommodate your eyeballs, but also they give protection to your eyes. Am I clear? Yes, bachcho. So only 1/5 part of the whole eye you can see from outside. If you look at your eye socket, you are not able to see the whole eye. See this, these are your eyelids, right? These are your eyelids, and only this part you can see of the eye. Am I right, kids? Only this much part is visible, which is 1/5 part of the total eye, which is visible to us. Am I right? Yes or no, kids, tell me. So remaining 4/5 part of the eye is inside the eye orbit. Am I clear what I said, bachcho? Please tell me. 1/5 part, 1/5 part is visible, and 4/5, barabar na? 4/5 part is in the orbits, not visible. All right. Now let's talk about structure of this eye, which is very, very important. And you all must know this structure, bachcho. How your eye looks or a structure of eye is. So this is from a front view, right? Side view also we are. Now we will study the structure of eye with the help of a side view or taking a section of the eye basically. So जब हम लोग eye का section लेंगे तो हम लोगों को 3 layers दिखाई देते हैं. There are 3 layers in our eyes, बच्चों. Anybody knows those layers, those names? The first layer or first name of the layer is your fibrous layer. जो सबसे पहला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं fibrous layer or fibrous jacket, fibrous tunic, all are same. Then the second layer is called as vascular layer. बच्चों समझ में आ रहा है क्या? सुन रहे हो आप लोग?
vascular jacket or vascular tunic. And the third most layer of your eye is known as a retina. Did you hear me? Please repeat these three names. चलो बच्चों बताओ मुझे 3 लेयर कौन से होते हैं आपकी आंखों में? बोलो बोलो. नील, can you? नील, can you answer? बोल बच्चा. Whenever you say eyes, there are 3 layers in the order from outside to inside or outside to inside. बोलो कौन से लेयर से? Come on, जल्दी जल्दी, everybody. Fibrous layer, vascular layer, and retina. Order समझ में आया? Fibrous layer outside, vascular layer middle, and retina is innermost layer. तो ये याद रखना है आपको ऑर्डर. अब आ जाओ बच्चों, एक एक लेयर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. ठीक है? चलो सुनो, अभी आपके आंख का सेक्शनल व्यू हम लोग देखने वाले हैं. नाउ शेप ऑफ योर आईबॉल इज बेसिकली स्फेरिकल और राउंड. ठीक है? द शेप ऑफ आईबॉल is basically like this, spherical, or it is round. And अब यहां देखो बच्चों, ऑलमोस्ट यहां से पीछे तक का पार्ट आपका आई सॉकेट में लोकेटेड होता है, आई ऑर्बिट में, और सिर्फ यहां से बाहर वाला पार्ट ही आपको दिखाई देगा. सो ओनली दिस मच पार्ट इज विजिबल. अंडरस्टैंडिंग? Yes. Check. This is inside the eye orbit. और यहां से जो बाकी यहाँ पे बाहर दिख रहा है अपने को, ये विजिबल पार्ट है. तो the first layer now when you say of your eye, जो सबसे पहला लेयर हम लोग बोल रहे हैं वो यही होगा, फाइब्रस लेयर. बट इस फाइब्रस लेयर में भी अपने पास 2 लेयर होते हैं बच्चों. So what are those 2 layers which are present in this fibrous layer? तो सबसे ये जो पीछे वाला पार्ट है आंख का, which is spherical in shape, located in the eye socket, this will be called as sclera. नाम याद रखो बच्चों. Sclera is the fibrous part. Fibrous part क्यों? Because it is made up of your collagen fibers. Fibrous part में जितने भी structures हैं, mostly they are made up of collagen fibers which provide elasticity. You already have studied about it. तो ये रहा sclera, which is white in color. ये पूरा जो structure है बच्चों, this will be white in color except this part. ये थोड़ा सा ऐसे bulgy part दिख रहा है अपने को यहाँ. This will be transparent. So this transparent part is nothing but extension or a continuation of sclera, which is called as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Cornea. तो when you say fibrous layer, तो ये आपके दिमाग में कौन से नाम आने चाहिए? You should remember about sclera, you should remember about cornea. तो इसमें क्या क्या आता है बच्चों? sclera आता है जो कि white part है, cornea आता है जो कि transparent part है. अब एक्चुअली ये transparent के पीछे you have got a colorful structures present here. कलरफुल स्ट्रक्चर मींस आपके आंख का स्ट्रक्चर इसी की वजह से दिखता है. एज इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट, कलर ऑफ योर आईज इज विजिबल थ्रू दिस. सो दैट कलर मे बी देन मोस्ट केसेस में इट लुक्स ब्लैक, इट लुक्स ब्राउन, समटाइम्स it is blue in color, sometimes it is green in color. So that is all because of pigment, and that pigment is nothing but your melanin. Kids, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? ये मेलानिन की वजह से होता है. आई होप यू हर्ड मी, यू अंडरस्टूड मी किड्स. समझा? तो ज्यादा मेलानिन होगा तो उसका कलर ब्राउन और ब्लैक होगा, कम मेलानिन होगा तो उसका कलर ब्लू या फिर बहुत कम होगा तो ग्रीन भी हो सकता है ना? ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, सो दैट यू माइट गेट, यू कैन सी थ्रू द सेम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. डिड यू? प्लीज टेल मी. समझ में आया क्या होता है कॉर्निया? और एक स्पेशलिटी सुनो इस कॉर्निया की. कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता है.
ठीक है, this lacks blood supply and therefore it can be easily transplanted. इसका सबसे सिंपल सर्जरी होता है बच्चों, corneal surgery is the most easy or a common surgery which you need to remember. All right, याद रहेगा बच्चों? Please tell me. बोलो. हेलो. तो ये जो व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर को ही तो इस व्हाइट कलर को हम लोग स्क्लेरा बोल रहे हैं. ये स्क्लेरा को ही इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट एज, जो हमारे आईलिड्स के नीचे होता है, यही स्क्लेरा का पार्ट विच इज प्रेजेंट बिलो आवर आईलिड्स और दैट एक्सटेंडिंग हियर, इसी को हम लोग कॉन्जेक्टिवा भी बोलते हैं. सो यू आल्सो कैन कॉल इट एज ए कॉन्जेक्टिवा. सो स्क्लेरा बोलो या फिर कॉन्जेक्टिवा बोलो, वन एंड द सेम. और इस कॉन्जेक्टिवा का स्पेशलिटी क्या होता है बच्चों? What's the characteristic feature of this conjunctiva? Yes, it is translucent. Basically, it is translucent. मतलब semi-transparent होगा. And this sometimes gets an infection and shows swelling. In that case, you call it as what? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Swelling को conjunctivitis. Yes, very good. Good job. कंजक्टिवाइटिस. इज दिस क्लियर? ये वाला लेयर समझ में आया बच्चों आप लोगों को? दोनों एंगल से, दोनों वेट से. दिस इज गोइंग टू बी द स्क्लेरा, मतलब ये पीछे का पार्ट. स्क्लेरा कंटिन्यू होके आगे क्या बनाएगा आपका? दैट विल फॉर्म योर कॉर्निया, जो कि ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का सर्कल दिखेगा, वो वाला, ये वाला. दिस पार्ट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज योर कॉर्निया. और उसके बाजू वाला पार्ट जो हम लोग को विजिबल है, व्हाइट इन कलर है, ट्रांसल्यूसेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेक्टिव. यहां तक समझा बच्चों? प्लीज टेल मी, आर यू ऑल कॉन्फिडेंट? यस गर्ल्स? Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ो. चलो, नाउ व्हेन यू प्रोसीड विद द सेकंड लेयर. सेकंड लेयर का नाम क्या बोला मैंने? वैस्क्यूलर लेयर. वैस्क्यूलर क्यों? What's the reason? Vascular means it is richly supplied with blood vessels. क्या होता है इसका characteristic feature? It is richly supplied with blood vessels. Not only richly supplied with blood vessels, ये colorful part होता है. क्या क्या features है इसके, समझ में आया? इसमें बहुत सारा blood vessels होगा और इसमें बहुत सारा मेलानिन होता है. So मेलानिन क्या करेगा? मेलानिन will give color. Already I told you, if there is more melanin, it will look black in color. थोड़ा कम है तो brown color, और कम है तो it will look blue color, बहुत कम है तो it will look green in color. So आंखों का कलर हमारा इस लेयर की वजह से होता है, जिसका नाम है बच्चों वैस्क्यूलर लेयर. यहां तक समझ में आया क्या आपको? बोलो बच्चों. Now इसके लेयर्स सुन लो. So when you say this vascular layer, it consists of three things. इसमें तीन चीजें आती है. सबसे पहली चीज हम लोग बोलते हैं कोरोइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कोरोइड. दूसरी चीज आती है इसमें, we'll call it as ciliary body. ciliary body. श्रीकांत, तूने सुना है क्या सब? Have you studied this in your ICSE? और लास्ट चीज आती है आइरिस. सुन रहे हैं बच्चों? बोलो मुझे. So it consists of three layers या three things: choroid, ciliary bodies and iris. तो ये iris एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के आंखों को कलर देता है. Color of your eyes is because of these iris. Okay, and that has got pigments of course. तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं नीट में आपके. स्पेशली रेटिना इज द बेस्ट और अ फेवरेट पार्ट ऑफ दीज पेपर सेटर्स. सो रेटिना के ऊपर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा. कल मैंने आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भेजे हैं, जो सिंसियर बच्चे रहेंगे, ओबीडिएंट, उन्होंने सॉल्व किए रहेंगे और डाउट्स भी रेडी रखे होंगे. एनीबॉडी ट्राई टू सॉल्व दैट? क्या किसी ने वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की? बताओ बच्चों. Ashna, did you try? Urvashi is there in the meeting? Yes, sir. आया आंसर्स उसके? आया आंसर्स उसका? उपमन्यु? सर थोड़े बहुत का तो आए.
गुड गुड गुड। चलो अभी एक इसका आंख और कान हो गया, तो हम लोग वही करेंगे। सो वी विल डू दोस क्वेश्चंस। आप लोग डाउट्स रेडी रखो, एवरी क्वेश्चन करना उतना अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है? सो शैल वी प्रोसीड नाउ? यस किड्स, क्या हम आगे बढ़े? यस सर। तो मिडल लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। मिडल लेयर का नाम है वैस्कुलर लेयर या वैस्कुलर ट्यूनिक। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, मेलानिन होता है, वो कलर देगा। अब मेन लेयर उसका यही होता है, कोरोइड। ये सीलियरी बॉडी और आइरिस उसका एक्सटेंशन होता है। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, अब आ जाओ इसके नीचे, कम डाउन इन दिस लेयर, वी विल टॉक अबाउट द सेम। और यहां देखो बच्चों, ये है आपका दूसरा लेयर, क्या नाम है इसका? कोरोइड। सो आफ्टर स्क्लेरा कम्स योर कोरोइड। ये कोरोइड पीछे से पतला होता है, आगे से ऐसे मोटा होता है। सो इट विल बी थिक फ्रॉम फ्रंट लाइक दिस, एंड इट विल बी थिन फ्रॉम बिहाइंड लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, समझ में आ रहा है? दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लेयर which you call as a choroid. Now this choroid here you are looking, it is seen as a blue color. Now in your original diagram or this front view, it will be like this. In front view, here is going to be your choroid. Did you get this? Please tell me. यस सर। Yes kids. So this is going to be the choroid. This choroid has melanin. Now you must be wondering about बच्चों कि ये इसमें मेलानिन क्यों चाहिए? ये तो बॉडी के अंदर वाला पार्ट है अपना. Why it needs melanin? What do you think? Any guess from your side? Why it is? Why it has got melanin? Can you tell me that? Even retina has got melanin. क्यों होता है बताओ तो? सर वो जो आईलिड के ऊपर जो हेयर होता है उसके लिए ब्लैक कलर लगता है ना? No, no, not that reason actually. रीजन ये है कि जब यहाँ से आपकी लाइट पास होगी तो वो व्हाइट कलर तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना बच्चों. डार्क कलर ट्रैप्स द लाइट, एब्जॉर्ब्स द लाइट. तो अगर ये डार्क कलर का होगा तो ये लाइट को पकड़ के रखेगा. इसके बदले अगर वो लाइट कलर होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा. सिंपल लॉजिक इट इज देयर. डिड यू गेट मी? समझा बच्चों? क्यों ये कलर, ये वाला मेलानिन क्यों होता है इसका? टू ट्रैप द लाइट, टू होल्ड द लाइट. यहां तक समझ में आया कि आपको? बताओ बच्चों मुझे, प्लीज टेल मी. सो फार क्लियर एवरीवन? Yes, sir. आगे Yes, sir. बढ़ो. अब यही आपका कोरोइड और मिडिल लेयर. और एक चीज आपने देखी होगी बहुत बार, अभी तो हम लोग वो वैसे छोटे कैमरे से वगैरह फोटोज नहीं निकालते, पहले वो होता था ना. या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी फोटो में हमारे आंखों का कलर रेड दिखता है. कभी किया है एक्सपीरियंस? हैव यू ऑब्जर्व दिस एनी टाइम? हाँ सर, वो जो कम मेगापिक्सल का कैमरा होता है उसमें रात में जब फोटो लेते हैं तब जी आंख जी. पूरा वाइट नहीं तो रेड दिखता है। वो रेड क्यों दिखता है उसका रीजन मालूम है? डू यू नो व्हाई योर आई लुक्स रेड इन कलर? इट इज बिकॉज यहाँ से अपने प्यूपिल में से जो लाइट अंदर जाता है ना, वो जाके इट विल गो एंड विल फॉल ऑन, विल स्ट्राइक योर इनरमोस्ट लेयर जो होगा रेटिना. और रेटिना में भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, तो दैट विल बी देन शोन इन द फोटोग्राफ. वो चीज होती है, इसलिए हमारी आंखें कभी कभी रेड दिखती है फोटोग्राफ्स में. सर और ये कैट का और कुछ कुछ एनिमल्स जो नाइट में देख सकते हैं उनका पूरा वाइट नहीं तो पूरा अलग कलर क्यों दिखता है? के पास सिर्फ रॉड्स ही होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स के पास. मैंने अच्छा आपको वो फोटो भेजा नहीं है, भेजूंगा मैं. उसमें वो जीके के टाइप पे क्वेश्चंस हैं कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, आउल एंड ऑल, उनकी आंखों में सिर्फ रॉड्स ही होते हैं. दे डोंट हैव कोन्स. बताता हूं मैं, आई विल टेल यू दैट. चलो आगे बढ़ो. यहां तक समझ में आया आप लोगों को कोरोइड क्या होता है? अब यही कोरोइड, यस सर। यही कोरोइड अभी आगे और पीछे एक्सटेंड हो जाएगा. नाउ दिस विल extend
here like this, इसको हम लोग बोलेंगे अभी सीलियरी बॉडी। समझ में आया क्या बच्चों? दिस विल बी कॉल्ड एज ए सीलियरी बॉडी। ऑलराइट, और आगे भी एक्सटेंड होगा, और ये जो एक्सटेंशन है ना बच्चों आगे का, इसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। Yes, children, iris is nothing but extension of your choroid only. So, इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? What this will have is this will hold your lens. ये आपके लेंस को पकड़ के रखेगा इधर। समझे बच्चों? So this is going to be your lens. तो लेंस के सामने बराबर इधर होता है आपका कलरफुल स्ट्रक्चर। तो यही कलरफुल स्ट्रक्चर है जो आइरिस है, इसमें मेलानिन होगा, और यही आपको बाहर से भी दिखेगा। ये कॉर्निया जो कलरफुल दिखता है वो कॉर्निया एक्चुअली इसका कलर दिखाता है अपने को। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। व्हाट कलर कॉर्निया इज शोइंग? इट इज शोइंग द कलर ऑफ योर आइरिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? तो लेंस के सामने होगा आइरिस, लेंस के पीछे क्या है यहाँ पे प्रेजेंट बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सीलियरी बॉडीज, और ये सीलियरी बॉडीज में छोटा छोटा थ्रेड्स भी होता है इससे, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये ऐसा है आपका सीलियरी बॉडीज, यहां से कंटिन्यू हो रहा है कुछ थ्रेड्स जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। याद रहेगा सब वर्ड्स बच्चों? बताओ मुझे। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये होल्ड करेगा आपका लेंस। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। ये भी इतना अच्छा नहीं बना जैसा मुझे चाहिए था, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। किड्स प्लीज टेल मी। यहां से छोटे छोटे धागे होंगे, थ्रेड्स होंगे, जो किसको पोजीशन में पकड़ के रखेंगे। यहां से जो अराइज हुए ये थ्रेड्स, दीज थ्रेड्स will be called as, क्या नाम बोला इसका मैंने? These threads are called as suspensory ligament. सब words important है बच्चों, every word is important, you must remember this. Clear है यहाँ तक सब लोगों को? बताओ मुझे। Is Yes, this sir. clear everyone? Okay. अब इस लेंस के आगे और लेंस के पीछे दो कैविटीज बनी है, आप लोगों को दिखाई दे रही है। You all can see there are two cavities, one in front of your lens and one lens मतलब यहाँ ये पूरा cavity, this whole space what you can see है ना बच्चों? Can you see this? बोलो बच्चों, ये वाला स्पेस दिख रहा है आपको लेंस के आगे? ओके, इस पूरे स्पेस को हम लोग कुछ बोलते हैं, किसी को याद है? और यहाँ अभी ये जो दो आपका आइरिस जो है, ये आइरिस दिस इज लाइक योर कैमरा लेंस बच्चों। जैसे कैमरे का लेंस वो उसका होल जो होता है उसको एडजस्ट करता है कम ज्यादा, पता है ना आप लोगों को, लाइट फॉल करने के लिए। वैसे इधर भी होता है। आइरिस इज लाइक योर कैमरा लेंस ओनली। दिस एडजस्ट्स how much light should enter inside through, ठीक है, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए थ्रू द स्मॉल पोर। क्या बोलते हैं इस पोर को? याद करो बच्चों, द पोर विच इज फॉर्म्ड बाय दिस आइरिस। इसी के बारे में आप लोगों ने सुना है, प्यूपिल। याद आया कि नहीं? बताओ। दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल, इट इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल। एम आई राइट? हाँ बच्चों, समझ में आया इतना? चलो अब आगे सुनो। अब आगे क्या है? दो कैविटीज बनी, मैंने बोला आपको। एक कैविटी है जो कि लेंस के सामने बनी है, और उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विथ वन एक्वियस फ्लूइड या लिक्विड लाइक फ्लूइड। तो इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एक्वियस चेम्बर। ठीक है, ये एक्वियस, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर।
कुछ पल्ले पड़ा। एक्वियस चेंबर के अंदर होता है एक्वियस ह्यूमर। स्पेलिंग क्या है एक्वियस ह्यूमर में? MOR की MOUR बच्चों? कैन यू टेल मी द स्पेलिंग? ह्यूमर का, एक्वियस ह्यूमर का स्पेलिंग क्या है? हाँ बच्चों, HUMOUR। कंफर्म बताओ, टेल मी। सर श्योर। ह्यूमर HUMOR। जो लाफेबल वाला होता है वही ना? ना रे, ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड। तो इसके अंदर जो कैविटी वो एक्वियस चेंबर है, उसमें फ्लूइड होगा एक्वियस लेकिन ह्यूमर। स्मेलिंग मतलब स्पेलिंग सेम है ना? अलग है, देखो कंफर्म आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा ना, वहां देख सकते हो आप। ठीक है, HUMOR। हाँ लिखा, वही लिखा मैंने। और अब यहाँ एक कैविटी बनी है। कहाँ बनी है कैविटी? लेंस के पीछे। सो ये जो कैविटी बनी है आपके लेंस के पीछे बच्चों, इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैविटी फॉर्म्ड हियर? ये वाला कैविटी जो बना है पूरा आपके लेंस के पीछे, इस कैविटी का नाम होगा विट्रियस ह्यूमर। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी एवरीवन। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। विट्रियस चेंबर filled with vitreous humor। तो ये विट्रियस अल्कलाइन या जेल लाइक होता है। अल्कलाइन नहीं, ये जेल लाइक फ्लूइड होता है। ये एक्वियस चेंबर में एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड होता है, मतलब मोर वाटरी होता है। तो ये थिक होता है, ये थिन होता है। और अब आ जाओ आगे बच्चों, दैट इज कमिंग टू थर्ड एंड लास्ट लेयर। अभी इसमें से जो बचा हुआ है वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। कौन सा लेयर अभी हम लोग पढ़ेंगे? बोलो बच्चों, आ जाओ यहाँ पे। फाइब्रस लेयर हो गया अपना। वेस्क्यूलर लेयर समझ में आया, उसमें कोरोइड था, कोरोइड का एक्सटेंशन से आपका सीलियरी बॉडी और आइरिस। इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट भी आता है, वो छोटे छोटे थ्रेड्स जो लेंस को पकड़ के रखते हैं। याद आया? अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आई, विच इज गोइंग टू बी द आई, द रेटिना। कौन सा पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों? रेटिना। तो यहाँ जो जो पार्ट्स विजिबल उनके नाम समझ में आए आपको? बोलो बच्चों, ये व्हाइट कलर का पार्ट मतलब कॉन्जेक्टिवा। ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये आपका कॉर्निया है, इसमें छोटा सा छेद होगा, ये आपका प्यूपिल है। तो ये कॉन्जेक्टिवा इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर स्क्लेरा। इवन कॉर्निया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्क्लेरा। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। हाँ ना, यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। से यस सर। यस, Yes, दैट्स sir. ग्रेट। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा और आखिरी लेयर, जो जिसका नाम है आपका रेटिना। सो आर यू रेडी फॉर इट? बोलो तो बच्चों, पढ़े हम लोग अभी? यस सर। चलो फिर आ जाओ। तो व्हेन आई से रेटिना, तो ये रेटिना सबसे अंदर वाला लेयर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू रेटिना, वी कैन सी बिकॉज ऑफ दैट लेयर ओनली। तो देखो इधर बच्चों, तो ये यहां तक ही होगा, लाइक दिस। ये वाला पूरा लेयर, दिस होल लेयर इज गोइंग टू बी योर रेटिना। ठीक है, समझा बच्चों? दिस थिंग इज कॉल्ड एज रेटिना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर दिखा, सीक्वेंस दिखा, तो ये सबसे अंदर वाला लेयर है रेटिना। नाउ दिस रेटिना, इसको थोड़ा हम लोग जूम इन करके पढ़ते हैं, थोड़ा इसको अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आता है, मैंने बोला है ना। सो इफ आई ड्रॉ दिस रेटिना इन अ zoomed व्यू, देखो बच्चों इधर, इफ आई एम ड्रॉइंग दिस एज अ रेटिना, तो इसमें भी आपके पिगमेंट्स होते हैं टू ट्रैप द लाइट, बराबर है?
It has got 3 types of cells basically. ये जो रेटिना है आपका, इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं और 3 रोज में लोकेटेड होते हैं. सबसे पहले सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चों, दे विल बी कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. ये देखो, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है. दे फॉर्म वन लेयर और इनका ये जो एक्सॉन है एक दूसरे में जुड़ जाता है. So here also you have got neurons. Here also you have multipolar neurons. Are you getting me? Please tell. तो ये सब न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन है यहाँ पे एक साथ में जुड़ जाता है. तो ये एक लेयर हो गया आपका सबसे बाहर. दिस इज आउटरमोस्ट लेयर वी कैन से. तो जिसके ऊपर सबसे पहले लाइट विल फॉल. सो लाइट विल हिट फर्स्ट रेटिना. रेटिना में भी कहाँ पे लाइट विल हिट? It will hit to this layer, this group of cells, जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों multipolar neurons, or there may be another word you can remember, ganglion cells. Did you understand? Please tell me. बोलो बच्चों, ganglion cells. श्रीकांत समझा क्या? बोलो. जैनब, you are understanding? मोहम्मद, ये रेटिना को हमने मैग्नीफाई किया है और हम लोग इसके Yes, अंदर sir. क्या होता है वो पढ़ रहे हैं. तो पहला लेयर हो गया आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का, उसको हम लोग गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं. उसके बाजू में होता है दूसरा लेयर. अभी मीटिंग एंड होने को है. आई कांट कंप्लीट दिस टॉपिक नाउ. वील हैव टू कम बैक. आपको वापस आना पड़ेगा. तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं. तो आ जाओ वापस आप लोग, फिर बच्चों पढ़ते हैं इसको हम लोग डिटेल में.